Okay. Rahul, am I audible? हाँ भैया. We So can start with myself, you, Rahul. Rahul. Okay, Start. myself Rahul Das Barik. I am from Cuttack, Odisha. I graduate from BTech Synergy Institute, which was in 2020. My recent SSB for SSC Tech, which will be on maybe November or December. So I think it's very good with Ankur Bhai. So there is, so it will be good if anyone, if so I there is no means no disadvantage. So only advantage is there. I think so. It will be good. Right. Okay. And also Ankur Bhai also help to means just like your parents just wake up you and port at your 5 a.m. calling you. So that was so nice. So I think no one can do this for you. Thank you, Rahul bhai. ठीक है. Any scope of improvement you would like to suggest? नहीं अंकुर नहीं अंकुर भाई और क्या है आपके लिए कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए बहुत मतलब आप जितना कर रहे हो बहुत है मतलब मीन्स प्राइस की तो छोड़ ही दो मतलब वो तो अलग बात है मगर आप जितना कर रहे हो मतलब सुबह उठाना तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं पहली बार मतलब कहीं भी आप देख लो इतना तो मैं तो खुद दो ऐसे ले चुका हूँ कोचिंग इतना तो कोई नहीं करेगा तो सुबह बाकी उठा के कोचिंग से तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कोचिंग तो मैंने भी की है. हाँ एंड आई नो द डिमांड ऑफ द कैंडिडेट्स. ठीक है कि हम्म आपको लाइक वो जो कैंडिडेट्स को जो चाहिए वो कोचिंग बेसिक कोचिंग्स नॉर्मली कोचिंग्स नहीं दे पाएंगी. ठीक है. हम्म बिकॉज दे आर रनिंग आफ्टर समथिंग एल्स. ओके. दिव्यम. Good evening, everyone. My name is Divyam Kumar. I am from New Delhi. I am currently pursuing BTech first year in Electronics and Communication Engineering in DTU. And the session was fantastic. Ankur Bhaiya is like a big brother who wakes up every day at 5 a.m. So, Bhaiya, you don't have any scope for improvement. You are already kind of perfect. We have, we need improvement, Bhaiya. So the session was fantastic, Bhaiya. And sometimes I was not able to wake up, but you called and then I was able to attend session. So thank you, Bhaiya, for all the things that you have done to us. Welcome. Thanks. Welcome, Divyam, and you have to continue like this only. You have to conduct sessions till your recommendation. जी भैया. Okay. Okay. Khushi. Hey, good evening, everyone. This is Khushi, and from Meerut, I have done BA. And talking about these classes of Apurvaya, मुझे seriously अब लगता है कि शायद मुझे पहले अपने attempt से पहले करना चाहिए था. जो अब कॉन्फिडेंस है इतना कि मतलब शायद अब क्लियर हो सकता है मतलब 75 से 80% कॉन्फिडेंस है तो अगर पहले अटेम्प्ट में कर लिया था तो शायद पहली बार में क्लियर हो जाता सो मतलब एवरीथिंग वाज गुड एंड फैंटास्टिक. ठीक है खुशी. अब ये 75 to 80% को 100% पे लेके जाओ. ठीक है. यस भैया. और वो 100% कैसे आएगा पता है? व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद एवरीवन. ठीक है. थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी बाकी लोगों के साथ. एंड जितने ज्यादा आइडियाज मिलेंगे एक्सपोजर मिलेगा उतना फायदा. ठीक है ना खुशी? एंड ओके कंटिन्यू भैया. कंटिन्यू लाइक दिस. तुम्हारी अभी एसएसबी कब आ रही है? दिसंबर जनवरी में होगी. ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, याद रखना. ठीक है. डेली यू हैव टू डिलीवर. डेली यू हैव टू लाइक लेक्चरेट विद कोड एंड ऑल दीज थिंग्स. जीडी ये सब करते रहो. ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है ना? ओके भैया. आई विल. मोनीश. मोनीश. I'm good evening, guys. I'm Monishar. I'm from Chennai. I completed my BTech in Electronic Communication. And talking about this workshop, it was overall good. I had got a good idea about psych because I had a good like previously I was writing TAT stories like in a short format. But after hearing your feedback, I came to know about how to clearly write the TAT stories and all. And there is nothing anything for scope of improvement, sir. Overall, it was a good workshop. ओके. थैंक यू मोनीश. कुलदीप. Okay, hi everyone, good evening. So I'm Kuldeep Singh. I am from Varanasi, Uttar Pradesh, and I completed my graduation in 2022 BTech Electronics and Communication Engineering.
talking about the feedback. So first of all, like he's like our second parents, I can say that, who daily we call at 5 to wake up. And second thing is, earlier I indulged the problems when solving or making the stories on tight stories. But from this session, I get to know that until I do not see the problem, do not make it. Third thing is like GTO, where I understand like how to approach the things. Like many people are involved here. I'll also learn from others also. So here is a platform where I can uh, talk with others and get to know that how can solve other problem in a many way. And apart from that, like from here, I make also group where we do the discussion kind of thing. It's really helpful. And talking about the interview also, where earlier I tell the serious negative about my parents, but from here I get to know that he tell the very funny things. Those are which are weakness of your parents or any friends also. It sounds like real. It's not a major thing. That's it. Okay. So like from Kuldeep's feedback, like today only I took one mock interview and there was one guy. पता है उसने क्या बोला? मैंने उससे पूछा कि ऐसे टीचर का नाम बताओ जो तुम्हें पसंद नहीं है. तो लाइक ही इज गोइंग फॉर एनडी एंड टीएस 10+2, तो वो मासूम है. तो वो बोलता कि सर मेरे को मेरे मैथ्स वाले टीचर पसंद नहीं है. तो मैंने बोला क्यों नहीं पसंद है भाई? व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? बोलता सर ही डिस्क्रिमिनेट्स बेस्ड ऑन जेंडर सर. मैंने बोला व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यू फेस्ड? टेल मी 3 इंस्टांसेस. तो बोलता सर एक बार क्या हुआ सर, आई स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स एंड वन गर्ल ऑल्सो स्कोर्ड लेस देन मी एज वेल, and he slapped me 10 times, and not even a single word he said to that girl. So this was the first encounter. मैंने बोला then tell me second, what happened next? So, sir, like whenever he used to conduct doubt sessions, he always used to cater girls first. And we were sitting where somewhere he doesn't even care about us. And he's always talking to girls only. And then the man बोला, okay, oh, very interesting. Your maths teacher is something different. Okay, so then I asked him, tell me one more instance. So like he was so blunt. He was telling everything about his maths teacher. If his maths teacher saw this kind of interview, na, then he will also like be in shame. Okay, and the third was like related to I wrote somewhere. एक्चुअली भैया कहा जाता है ना, बी योर सेल्फ, तो ऐसा लगता है सबको क्या Don't ट्रुथ be रहना like है. this. Don't be so अब मुझे straightforward. मुझे पहले ऐसा लगता था, बट नाउ आई एम लाइक कि नहीं यार, ऐसे नहीं चलती चीजें. हाँ हाँ, और भैया सेम इनफैक्ट है सब ये, लोग ये मतलब भी मैंने बोलते हैं ना. टैलेंटेड में यही सुना है कि बी योरसेल्फ, जो मतलब तुम हो. और यूट्यूब पे भी जो वीडियो है वो कर्नल एम नेहरू करके जो है उनके यूट्यूब चैनल, और वो फ्राइडे का डाउट सेशन, उसमें यही सब है मतलब. भाई कर्नल साहब का नाम मत लो, ये कल को मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे. ठीक है. इनफैक्ट वो ऐसे वो बहुत सारे लोग सीक्रेट कर बोलते देना भी है ना बिल्कुल. कि लाइक आप ऐसे रॉ जाओ, लाइक यू आर हैव दैट गुड, मतलब पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, आपको रॉ जाना चाहिए, लाइक ज्यादा प्री तैयारी कंसीव्ड नहीं और करनी ये. चाहिए. हाँ, प्लेयर नहीं हाँ, चढ़ानी चाहिए. तो लाइक उसने पता है थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया था? थर्ड एग्जाम्पल दिया था लाइक ही पे अटेंशन टुवर्ड्स गर्ल्स ओनली. मतलब लड़के मर रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे के चाकू मार दें तो भी कोई फर्क नहीं है. लड़की को अगर कुछ हो जाए तो फिर नहीं नहीं नहीं, लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? मतलब हमारे तो मैथ्स ही वाले वाज ये तो सो टीचर तो ब्लंट. अल्टीमेट ऐसे ना ट्रुथ है गर्ल्स भैया. को ऐसे बोलते थे गर्ल्स को, तो लाइक ओ हसीना जुल्फों वाली ऐसे करके बुलाते थे, लाइक किसी को ऐसे पॉइंट आउट करना होता था तो. भाई ये टीचर नहीं है. ठीक है ना, ये कोई और ही है. हाँ, हाँ. ठीक है ना, ये टीचरों वाली हरकत नहीं है. ऋषिकेश. भैया एक चीज पूछना था, ये भैया हमारा यस मॉक कुलदीप. कब 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 लोगे भैया, मॉक इंटरव्यू लाइक? Mock interview, I will tell you, I will share you details, and whenever you are having your SSB, just ping me before 2 weeks so that I can like manage everything. ठीक है. ओके, ऋषिकेश. थैंक यू. Maya, am I audible? Yes, yes, you are audible and visible. Good evening, Some like noise is coming from your side. Rishikesh. ऋषिकेश, Celebration. can you turn गणेश off सर your को fan? Celebrations. नहीं, सर गणेश सर भी तो Actually, celebration फेस्टिवल हो इज रहा है. गोइंग. Yes. ढोल ढोल नगाड़े बज रहे भैया, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट हो रहा है. Can you turn off your fan? Some fan voice is coming, I believe. Now सर it is much बैकग्राउंड से better. वो कुछ फेस्टिवल वगैरह क्या बता रहे? Uh, खिड़कियां बंद करी होगी. हाँ, Now it's clear. now it's much better. Good evening, everyone. Myself, I am Rushikesh. I am from Tirunelveli, Tamil Nadu. I completed BE Computer Science Engineering, and I joined recently from Ankur Bhaiya class.
So he is not like a teacher; he is like big brother. In my first SSB, I met him, and I become. Uh, I am already a subscriber, but I don't know he's a Ankur Bhai. He told me to subscribe my YouTube channel. So I gave my phone and I get to know that I am also a subscriber of him. Then After only I conference, get we to were know about. discussing this, no? Yeah. Then only I get to know more about Ankur Bhaiya. Then I used to start to watch his YouTube videos regularly, his mock interview and the PBDT videos. Every videos I used to saw. Then I saw his workshop, so I attended. I get to learn more about many things. I like that AutoCAD GTO in which we can build GTO techniques, also PBDT, everything. I get to learn many things as hardcore repeater. It was very good for me to identify my weakness and work upon it. So it was excellent class. Everyone must join to Ankur Bhaiya. So he's like big brother. So the recommendation is sure. Thank you everyone. Thank you, Rishikesh. Thank you for your valuable feedback. I hope people listen to you. Shraddha, भैया स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना भूल गया था मैं। हाँ, बता दो भाई। कुलदीप बता दो। भैया थोड़ा ना अपना स्ट्रिक्ट हो जाओ कि टाइम को लेकर ना कितने बजे आना है तो आना है, क्योंकि एज गुरु हो और किसी का भाई भी हो तो मुझे लगता है होगा तो सब लोग थोड़ा आपको ना सीरियस लेंगे, तो यार वो मैं होना बहुत स्ट्रिक्ट जरूरी इसमें है। मैं सर की गलती नहीं है, सर तो टाइम पर आ अरे जाते हैं अब, और उठाते भी है सबको, और क्या करेंगे सर। भाई अब क्या तुम्हारे बेड के बगल में वो आके तो बैठ हम काम जाऊं? अरे नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि एक होता है ना टीचर की, मतलब आप टीचर हो तो जैसे कंट्रोल करना आने चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा स्ट्रिक्ट बनोगे ना सबके लाइक साथ, सी अपने आप सब टाइम वो करेंगे बट वो स्ट्रिक्ट चीज। लाइक बनने से फिर सब कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं ना, लाइक बात करने में और एक्सप्रेस करने में, तो वो फैक्टर भी आ जाता है वापस। वो जो डर का माहौल है वो नहीं बनाना भाई, कि भाई अगर तुम नहीं आए तो फेल टाइमिंग को करना लेके बेल्ट तुमको। भैया, लेके ओनली आया, टाइमिंग को लेके, दैट्स इट। ठीक है। बेल्ट नहीं, लेके। ये चीज देखो, ये तो इंटरनल मोटिवेशन पे है भाई। तुम्हें मैंने एक स्टूडेंट के बारे में बताया था अपने, ही इज राइट नाउ अंडर ट्रेनिंग इन एट आईएनए। भाई वो लाइक मैं उसको जैसे ही लिंक भेजता था ना ग्रुप पे, वो मेरे से पहले पहुंच जाता था। मुझे तो ऐसा लगता था इसने होल्ड सेशन किया है, इसी ने लिंक भेजा है। ही इज ऑलवेज देयर। मतलब मुझे डर लगता था कि भाई ये मेरे से पहले, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाता, उसका कैमरा पहले से ही ऑन है। एंड बोलता था भैया अब स्टार्ट करें, लेक्चर स्टार्ट करूं। मतलब भाई तो शुरू करो, और वो 15-20 मिनट का लेक्चर देता था। जब उसकी वर्कशॉप चल रही थी बाकी लोग तो मजे में थे। उनको पता है कि विष्णु आएगा, लेक्चर 20 मिनट का देगा, 10 मिनट हम लोग फालतू बातें करेंगे, फिर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी लोग चिल थे। ठीक है, उसमें भी 2-3 लोग थे, देते थे, जबरदस्ती बोलते थे विष्णु भाई हमें देना है। एंड दे ऑल आर रिकमेंडेड। ठीक है, अपना मतलब मेहनत करोगे तो पक्का मिलेगा। एंड वो जो इंटरनल फायर है वो आपको लानी पड़ेगी। ठीक है ना कुलदीप भाई? अब मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, अगर जबरदस्ती करूंगा तो भाग जाओगे तुम लोग, कि नहीं नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, वरना भगा दूंगा ग्रुप से। अगर कोई मेरे को 5 मिनट में लेट दिखा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सब फालतू बातें हैं। अगर आपको आना है, आपको जरूरत है, वो आप आओगे। ठीक है ना कुलदीप भाई? ठीक है, ठीक है। ठीक है, वैसे लाइक आई वैल्यू योर पॉइंट, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पॉइंट। है ना? और बाकी चीज लोगों को खुद से समझना चाहिए ये चीज। है ना? ऐसा नहीं है कुलदीप कुछ गलत बोल रहा है, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर ये लाइक रेस्ट्रिक्शंस लगाने भैया लगूंगा ना, तो मेरा मतलब दिमाग इस डायरेक्शन में जाएगा। मैं चीज़ों को यस भी ऐसा कुलदीप। देखता था, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि जितने लोग हैं वे सब लोग मतलब मेहनत करने के लिए और होने के लिए आए हैं, ठीक है, मैं ऐसा हम्म एज्यूम करता हूँ। हम्म अब भी ऐसा ना कि अगर इन्वॉल्वमेंट रहता है तो एक दूसरे से सीखने को ज़्यादा मिलती है, और तुम जो गलतियाँ करते हो और एक दूसरे से जो बॉन्ड बनता है ना, समझ में आने आने लगती है चीज़ कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, तो हम्म पॉइंट आउट करते तो अच्छा बोलता अच्छा ठीक है यहाँ से ये चीज़ सीख सकता हूँ। लेकिन हम्म वह यही होता है ना कि जब कैजुअल चीज़ें चलती है तो फिर लगता है अरे यार हम्म। हो ही नहीं रहा कुछ, तो मतलब यहाँ पे तो वैल्यूबल वो ही चीज़ नहीं होती, फिर डिसिप्लिन ऐसा तो लगता है। डिसिप्लिन यार, वो ऐसी चीज है, हम्म, डिसिप्लिन का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है। और ठीक। ठीक है, ये चीज मैं देखूंगा, करके देखता हूँ कि लोग आते हैं कि नहीं। नेक्स्ट वर्कशॉप में मैं लिमिट्स लगाऊंगा थोड़ी सी। ठीक है। नहीं, जैसे टाइमिंग का भी डेडलाइन रख दो ना, कितने बजे तक कितने बंदे 9, को, तो भी जैसे थोड़ा। 9 इवनिंग का सेशन है, 9-10 तक बोलूंगा कि 9-10 तक आ जाओ। राइट। लेकिन फिर यार बाद में कोई ना कोई मैसेज कर देता है, प्लीज भैया, प्लीज भैया आज ये काम था, प्लीज अंदर ले लो। ठीक है, मैं क्या ही मना थोड़ी कर दूंगा कि नहीं नहीं तुम आज टाइम से नहीं आए हो, गेट लॉस्ट। ठीक है, राइट, राइट। नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। श्रद्धा,
Am I audible, sir? Yes, you are audible and visible. Okay. Myself, Shraddha, and I belong to the city of revolution, that is Meerut, and I have completed Bachelor of Science. Then I pursued MA in Anthropology, and afterwards I started preparing for UPSC. I gave 3 attempts, and I could not make it, but due to my consistent efforts, I cleared CAPF Assistant Commandant last year, and I have gave multiple CDS exams. And last year I appeared for SSB. I reached till the conference stage, and this year this is my second attempt, and I'm very hopeful that this time I will make it because Ankur sir guidance is like light in my life because he is not just sir. ये मतलब सच में एक गुरु है और गुरु का काम होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना और वाकई में इन्होंने सच में प्रकाश दिखाया है मतलब सिर्फ वर्कशॉप पूरा करना है उनका मोटिव ये नहीं रहा इनके अंदर एक फायर है और वो फायर की जो चिंगारी है ना वो हमारे अंदर भी आ गई कि यार अब तो रिकमेंडेशन लेना है तो इनके अंदर एक ज्वाला थी कि मैं चलो नहीं हो पाया सर्विस में बट मैं ऑफिसर्स बनाऊंगा फैक्ट्री लगाऊंगा ऑफिसर्स की तो वो चीज़ यहाँ तक आ रही है उस चिंगारी की जो फायर है थैंक यू सर चमका दिया आई इसने। होप ये चिंगारी सबके अंदर लगे और फिर ये ज्वाला में कन्वर्ट हो। ठीक है, ये जो वही ज्वाला तैयारी मेरे करके आई अंदर है। थी श्रद्धा। नहीं, श्रद्धा तो जस्ट मैं ये बता रहा हूँ इसका मतलब लेक्चरेट सेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। ये आग वो लगा देगी, चीज़ है कि इंटरव्यूअर को चमका देगी। ये काफ़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना चीज़ें क्या जो है? अंदर छुपी हुई थी ना वो इस उल्टी सेशन कर दी। के दौरान वो बाहर निकल के आई है हमारी पर्सनालिटी की अब तुम्हें पता चल गया कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ्स थी, वो कैसे पोर्ट्रे करनी है। क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ चमकाना बतानी कैसे है? नहीं है। इंटरव्यूअर को कैसे चमकाना है? यहीं से सीख लिया ये चमकाना है, सब। ठीक है? नहीं एक्चुअली सर पता है मैं आपको पर्सनल कुछ शेयर करना चाहती हूँ मतलब मैं 2-3 साल से यूपीएससी के लिए कर रही हूँ ट्राई बट कुछ फ्रूटफुल आउटकम नहीं दिख रहा है तो काफ़ी एक तरह का प्रेशर था और बल्कि मेरे को मेरे ही ऊपर काफ़ी डाउट होने लगा था कि मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ बट आपसे मिलके आपकी बातों को सुन के आपने मेरे को थोड़ा-सा सिखाया कि यार फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। एट द एंड क्या मैटर करता है कि हम उस फेलियर के को ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो ये श्रद्धा एक चीज़ बात बोलना चाहूंगा इस पे ना ये जो चीज है ना डाउट वाला ये ना कोई भी प्रिपेयर करता है ना लॉन्ग टर्म कोई भी चीज की तो सबको होता है हाँ। मुझे भी होता है कि अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ गलत तो नहीं कर रहा हूँ कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ऐसा होता है हुँ। लेकिन जिस दिन आप हो जाओगे ना उस दिन लगेगा अरे भाई मैं तो बिल्कुल सही था ठीक है अरे बहुत गंदा डाउट होता है मुझे भी पता है श्रद्धा को तो अटेम्प्ट निकले सीडीएस के मेरे तो निकले भी नहीं थे और मेरा लास्ट अटेम्प्ट आ गया ना फिर मैं आराम से सो रही थी घर वाले बोलते तेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी नहीं करी कुछ और कर मैंने कहा नहीं अब आप शादी करा दो अब मेरे से हो गया अब आप लोग समय यही हो चुका चाहते थे है। ना हाँ ये एक आप ना लोग यही वो चाहते थे वही हो हम गया लोग ना तो करा दो दिमाग में अपनी लाइफ का पूरा एक ये बना के आज रुला रखते के हैं। रहेगी ये। एक लाइन बना के रखते हैं, टाइमलाइन बना ये के रखते हैं रुलाएगी कि आज। लाइफलाइन 21-22 एनालिसिस। साल तक हाँ, ये वही है ना, ये एंथ्रोपोलॉजी वही होते हैं ना जो क्या ह्यूमन बीइंग जब कुछ या होता है, क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता। द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। हाँ, इसलिए ऐसी ऐसी कहानी सुना रहे हैं रुलाने के लिए। नहीं बेसिकली हम लोग ना एक टाइम फ्रेम बना के रखते हैं कि हम लोग ऐसे बन जाएँगे, ये कर लेंगे। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है हमें वो तो मोह हो सक्सेसफुल गया ना लाइफ मोह के माया पीछे हो गया नहीं तो बस बस ज्यादा मोह माया हो गया इमोशनल नहीं होना है श्रद्धा श्रद्धा मुझे तो लाइफ के इमोशनल कर पीछे देगी भागो भाई, चलो। जैसी ये बातें कर रही है। ये फेलियर अपना है याद अंकुर आता भाई, और नहीं, ऐसे बोलते हैं लाइक फेलियर। श्रद्धा में बहुत पॉजिटिविटी है। लाइक अगर तुम राइट बात राइट करोगे सेशंस में, एक चुलबुलापन, लाइक ये आके लाइक हंसा देगी, माहौल बना देगी कि हाँ ठीक है, लाइट कर देगी मोमेंट को। ठीक है, सो दैट इज गुड। ठीक है, भैया इसके बाद एनीथिंग आप एल्स? फीडबैक देना हमारे लिए, भाई हमारे हाँ अंदर हाँ क्या वैसे मैं ही तो बोला सही मैं बोला रोज ही फीडबैक देता हूँ भाई। नहीं नहीं आपको भी बोलो बोलो श्रद्धा।
नहीं सर, बस इतना ही बोलने हैं, मेरी बातें तो हो गया खत्म नहीं ऐसे। होंगी सर। ये तो ठीक है। ठीक है। तो ऐसे ही मुझे भी ज्ञान देते रहना श्रद्धा, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, बीच बीच में बता देना कि ऐसी बातें कर देना, अच्छा लगता है। नेहा। ठीक है सर। Okay. Hello everyone. My name is Neha Shaktawat. I'm from Udaipur, Rajasthan. I did my graduation from BSc Computer Science. And talking about सर, तो मुझे सर के बारे में यूट्यूब चैनल से पता चला था, जहाँ से मैंने मेनली तो मैंने सर का पहले व्लॉग देखे थे, जो एसएसबी के एक्सपीरियंस थे। उसके बाद में सर की जीटीओ की वीडियोस देखी थी मैं। तो लाइक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग मैंने वैसे लेट ज्वाइन करा था, बट स्टिल मैंने सारी क्लासेस वैसे देख ली है। तो मुझे पहले बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, लाइक इवन छोटी-छोटी चीज़ों में, लाइक टैट और मेनली टैट और पीपीटीटी में डिफरेंस क्या होता है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बोलना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, लाइक ये तो पता था क्या नहीं करना है, बट उसकी वजह से इतना ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैं सोच रही थी कि मैं लिखूँ क्या? कि मतलब ये भी नहीं लिखना है, वो भी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, जो कि नॉर्मली मैंने यूट्यूब के काफ़ी सारे चैनल से देखा था। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, और लाइक और सर ने जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस करवाए हैं, उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बाकी है। मेरा 1 महीने में अगर डेट आ गया ना, तो मैंने क्या करना है? तो लाइक वो बहुत लाइक सही है एंड इन डेप्थ क्वेश्चंस है, एंड काफ़ी इंसाइट वगैरह मिलता है अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे, एंड आपको खुद अपने बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। एंड मेनली चीज़ यही है कि सर कम है, और सर लाइक एज अ फ्रेंड और एज अ बडी ज़्यादा सर लाइक रहते हैं सबके साथ। और सबसे मेन थिंग सर की, वो सुबह 5 बजे उठाने वाली, तो सर लाइक ऐसा है कि सर आपकी कल क्लास नहीं थी तो मैं नहीं उठ पाई थी। और जब फर्स्ट फर्स्ट डे सर की क्लास हुई थी, तो सर ने मुझे कॉल किया था 5:15 पर, तब मैं सो रही थी, क्योंकि मैं पहले रात को पढ़ती थी और मैं सुबह लाइक लेट तक सोती थी, एटलीस्ट 7-8 बजे तक। तो सर का जब पहली बार कॉल आया तो मैंने लाइक देखा कि लिख रखा है अंकुर सर, और मैंने बोला अरे सर मेरे को अब पता नहीं कॉल अटेंड करूंगी, बोलेंगे क्यों आए क्यों नहीं क्लास में, फिर क्यों लिए दे रहे हो। तो मैंने उठाया नहीं और मैं फटाफट रेडी वेडी हुई, तो मुझे 5:30 हो गए थे, फिर मैं जाके फटाफट क्लास ज्वाइन करी। तो लाइक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी अच्छे बॉन्ड्स भी बने। तो आई होप लाइक मैं इस बार लाइक मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है। तो वैसे तो जैसे कहते हैं एसएसबी एक वे ऑफ लाइफ है, तो आप जितना प्रिपेयर करो उतना कम पड़ता है। तो टाइम तो कम है, बट आई होप मैं कर लूँ, और बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं तो इनसे भी हेल्प ले ही लूंगी मैं। कर लोगी तुम। थैंक यू। ठीक है ना, नेहा हो जाएगा। नहीं तो फिर सर शादी है ही है, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं, ऑफिसर मुझे पकड़ समझ नहीं लेना। इतना घर वालों से बोल देना इतना ऑफिसर और नथिंग। ठीक है, वही या तो मैं ज्वाइन करूंगी एज एन ऑफिसर, अदरवाइज आपको कोई ऑफिसर पकड़ के लाना पड़ेगा, वरना नेहा के आप लिए ना अपना सर देख अरे लो। एक आंसर की वीडियो भेजूंगा मैं। क्या बोल रहे हो कुलदीप? आंसर की एक वीडियो भेजूंगा आपके लिए। अच्छा, मोटिवेशन के लिए? नहीं यार, मुझे शादी तो शादी मेरे क्यों करना है? शादी तो लाइफ तो बहुत है। अरे मोटिवेशन के लिए मेरे घर में वो शादी वाला जो गीत चलता है ना, एक सॉन्ग घर वालों के उधर से, वो ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मेरे को ये तो नहीं करना एटलीस्ट नहीं, इतना मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी। नेहा, मैं तुम्हें बताऊं, ये इंटरव्यू में भी बोल देना। बोल देना सर, ये नहीं तो प्लान बी इज माई शादी। वो भी हंस देगा। हाँ सर, पता है पहले मैं सीधे अपने फ्रेंड्स को रिजेक्ट। बोलती थी कि साला तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा पेपर वेपर क्लियर करो, क्योंकि सब मेरे जितने फ्रेंड्स थे मोस्टली वो रिटर्न एंट्री वाले ही थे, तो मैं उनको बोलती तुम रिटर्न क्लियर करो, अकेडमी अकेडमी जाओ, मेरे लड़का देखो ऑफिसर। तो मैं उनको बोलती थी ना तुम जा रहे हो ना मेरे घर वाले ला रहे हैं। तो मैं उनको बोलती थी कि अगर मुझसे प्लान भी, जैसे सब प्लान करते तो मुझे पूछते थे कि प्लान भी क्या बोलेगी तू, कि मैं बोलती थी सर मैं फिर यही बोलूंगी कि है ना, अगर नहीं हुआ ना तो मैं तो आर्मी ऑफिसर से कर लूंगी, जाना तो कैंट एरिया में ही है, एक्सपीरियंस तो कोई ले ही बात नहीं। लूंगी लाइफ टाइम। हाँ और मैंने कहा मैं तो फिर दोस्तों को छोड़ती हूँ, तुम्हारे पास ज्यादा तो ये चांस भी और नहीं है, तुम तो और फिर भी नहीं एज अ कर सकते स्पाउस ये तो चीज। तुम्हारे मजे ही मजे हैं। तुम्हें तो बस कैंटोनमेंट की लाइफ ही जीनी है। हाँ सर, और नहीं तो क्या, वो जो बोला था ना बेस्ट फ्रेंड वाला, तो सर एक फ्रेंड की जरूरत है बस अच्छे से। सही है यार, मतलब नेहा का तो प्लान फिक्स है। भाई राहुल, तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी मेरे भाई।
ठीक है, तुम्हें तो अफसर ही बनना पड़ेगा। लड़कियों के साथ हो जाता है, लड़कों को कोई लड़कों ऑप्शन के नहीं साथ भैया। नहीं होता। हमारे लड़कों पास को कोई कुछ नहीं नहीं पूछता। पीछे। हाँ वो रुपेश है ना कि नहीं सर, हमें तो फ्रेंड जोन कर देती है। रुपेश, रुपेश बताओ, तुम्हारी भी बात सुन ले। व्हाट इज योर फीडबैक ऑन दिस वर्कशॉप? सर तो भूल Sir, ही गया am I मैं तो। audible, sir? हाँ हाँ, बोलो आज रुपेश। ऑडिबल हो इतने दिनों के बाद। आज बहुत अच्छे से आवाज आई क्योंकि मैंने ब्लूटूथ खरीद ली है, मतलब मुझे ब्लूटूथ परफेक्ट। कहीं से गिफ्ट मिला है। अरे आई एम वेरी लेकिन हैप्पी। रुपेश, किसने गिफ्ट और किया हमें भी तुम्हें? आ रही है अच्छे से। किसने गिफ्ट किया रुपेश तुम्हें? भैया थोड़ा टॉप सीक्रेट है, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। हाँ बता पता नहीं चल गया पाते। इससे। अगर देखो, सर अगर कोई इंसान यही बोल रहा था छुपा ना रहा कि है, लाइक वो बेस्ट फ्रेंड वाली बात। नहीं, अगर कोई इंसान छुपा रहा है मतलब गड़बड़ है। सीक्रेट, हाँ सर, सीक्रेट उसी के समथिंग पास होता है जो गलत समथिंग। काम करता है, कांडकारी समथिंग काम। फिशी फिशी। फीसी फीसी। हाँ। भैया यस रुपेश, फ्रेंड ने दिया। फ्रेंड ने दिया, नहीं तो वेरी गुड। पहले रिश्ता समझ नहीं आया इसको, एक लाइन पहले। जब इसको पता चला अब ये लोग गलत डायरेक्शन में जाएंगे, इससे अच्छा फ्रेंड बोल देता हूँ। यस रुपेश, कंटिन्यू विद योर फीडबैक। हाँ भैया, हाँ भैया। I might feel like there must be some internet problem here, but I would able to like without camera on, I can do हाँ हाँ। that. Okay. Um, Good evening, everyone. My name is Rupesh Kumar Chauhan. I belong to Lucknow, Uttar Pradesh. I have done my engineering from RRIMT, and this will be my some around 9 to 10th attempt. Uh, Talking about Ankur Bhaiya, see, it's been a long journey. I saw him on YouTube. So from there, I got the guy like some instinct about him, and I started my journey there itself. Later, with his guidance, I find that brainstorming something which is very, very much important. The way people used to say that having that being yourself is the only key to being success in SSB, but this is no point at all. I believe Ankur Bhaiya has just opened my third eyes for the SSB. And though in the past 2 days I had my SSB, I got screened out, but which never led me down before. Like earlier also it didn't let me down, and even today itself it's not going to let me down anyways. I'm going to fight for the next attempt, and I'm very sure that once I'll get in, I'll be there. I know that, and that is only just because of Ankur Bhaiya. I had taken one of the coaching before, but they didn't guide me like this. What Ankur Bhaiya had done, I'm not going to take its name. Ankur Bhaiya knows very well. They so I believe coming to Ankur Bhaiya, you will find that interview questions would really amazing. And this much I was doubting myself how would I able to face that interview. But Ankur Bhaiya had given me a lot of questions, lot of replica of questions that you would be able to clear that interview very easily. And yes, Ankur Bhaiya is the godfather of SSB. I would say that what is being mentioned by Rishikesh. And psychology, if like that was one of the like initially we used to prepare VAT SRTs more SD more than what we need to do. Like after giving that instinct about brainstorming of that is very necessary, and I can have multiple examples of pictures that I can put on whatever come in front of me in the form of image. Later interview is amazing. GTO part was also very good. You were able to solve all that. You'll get all that way of solving that Prasid Fatta where you need to put on. And this is all about Ankur Bhaiya. I believe come to Ankur Bhaiya and he'll guide you a good one and make you into. Thank you, Bhaiya. थैंक यू रुपेश। तुम्हें स्क्रीन आउट कैसे हो गया Thank you, भाई? Bhaiya, for all the screen out में ऐसे हो गया. I gave my narration very well. This was the first time that I gave my narration very well, and not very well. I was not. I wrote my story very well. I gave my narration very well. My GD was amazing, but the moment people nominated me, तुम नॉमिनेट हो गए तब जाके स्क्रीन आउट हो that गए? was the yeah, that was the biggest reason. And even though the instruction was like instruction बोला गया था कि you have to give the conclusion while sitting. I didn't hear that. I stood up. और उसके बाद से भैया first one was that, and second one, the moment I like people like watching people face, I saw SSLs
अरे जैसे खड़ा हुआ ना, उसका मुंह नीचे हो गया, मैंने बोला लो हो गया काम। इतना और नहीं सोचते हैं भाई फिर रुपेश भाई। और उसके बाद से लड़कों ने भी बोला, लड़के ने इशारा किया, तो फिर मेरा जो कॉमन हमने डिस्कस किया था ना, इट ऑल वेंट इन द वेन। आई स्टार्टेड फंबलिंग, I started like giving, like I started not able to give all the point that was being discussed, and अपने I आप को was अंडर saying एस्टिमेट कर whatever दिया। I was like. तुम्हें पता है, हाँ एग्जैक्टली। तुम्हें ग्रुप ने नॉमिनेट किया, इसका मतलब है कि तुमने जीडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन ये क्या हुआ, तुमने यस हौसला सर, तीर ले लिया। ठीक है, अब तुम लाइक एग्जैक्टली यहाँ एग्जैक्टली। पे तुम्हारे साथ दो अच्छी चीज होती, या तो तुम इसको लाइक कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन को यहाँ पर लेके जाते और बिल्कुल फाड़ते हुए अंदर घुसते, बोलते आज तो 5 दिन तो यहीं खाऊंगा। ठीक है, दूसरा रास्ता है मैं कि भाई पूरा जो श्योर तुमने था, ये पूरा किया, श्योर था। ठीक है, तो वो चीज है। हाँ तो पूरा श्योर आपको था, कंपोजर पूरा श्योर मेंटेन था। करना पड़ेगा। ठीक है रुपेश, तो यही तो टेस्ट है भाई, अंडर प्रेशर यू हैव टू मेंटेन द कंपोजर। कि आप पे कोई भी टेस्ट या टेक्निक पूछी जाए तो यू हैव टू लाइक टैकल दैट। ठीक है, मैं पूरा 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 श्योर था कि मैं जाने वाला हूँ अंदर, बट मोमेंट इट स्टार्ट लाइक मेरा फिर दिमाग वहां स्टक कर गया, फिर वहां भाई से नहीं हो मैं पाया। पता है क्या करता हूँ, और मेरा भी जीडी अच्छा जाता है, लेकिन मुझे पता है ये लोग मुझे नॉमिनेट करेंगे, उससे पहले बोलता हूँ आई बिलीव जेंटलमैन सो एंड सो चेस नंबर गिव वंडरफुल पॉइंट्स एंड आई थिंक वी शुड नॉमिनेट हिम फॉर द कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन, बिकॉज मेरे को पता है जीडी में मैंने इम्पैक्ट डाल दिया है, उस जी असेसर के अंदर लाइक इम्प्रिंट हो चुका है कि ये बंदा एक था, इसने अच्छे पॉइंट्स बोले थे। अब ये लोग मुझ तक आए, मुझे पता है ये लोग मुझ पे आएंगे, लेकिन मुझे क्यों रिस्क लेना है भाई, मैंने बता तो दिया, चलो ठीक है इसी पे डाल दो। अगर इसने अच्छा किया तो अच्छी बात है, वरना घर जा रहा है। ठीक है, सर वो जैसे हाँ कि मेरा एग्जैक्टली, फर्स्ट मेरे को बार ऐसे है किसी तो ने बोला था। क्या, यस नेहा। मुझे नहीं नहीं रुपेश को बोलने दो। मुझे ऐसे किसी ने बोला था, यू शुड हैव नॉमिनेटेड समबडी एल्स। जैसे ही नाम हुआ तुरंत बोल देना चाहिए था, बट यू डोंट नीड टू स्टार्ट इट, डोंट नीड टू स्टैंड लाइक दैट, ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए था। नहीं बट नहीं वो ठीक हो है, गया उतना पे, अब हो गया। खड़े खड़े हो जाने में वो नर्वसनेस में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वो जो नरेशन था ना वो मेंटेन करके रखना है आपको। लाइक आप कैसे बोलते हो, आप इवन फंबल नहीं करते हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना रुपेश? इवन देखिए पूरा थ्रू आउट द सेशन आई वाज डिस्टर्बिंग यू बाय माय like ridiculous headphone. नहीं नहीं इट्स फाइन। Everybody was saying that put off this headphone, put off this third headphone. ठीक है, now I ask, like you can hear me very clearly, I can hear you yes, very clearly. but on the very last class you have introduced your new headphones, so you have to utilize it, so you have to conduct sessions on regular basis. Now this is your responsibility हाँ भैया, Rupesh हाँ to भैया, utilize your हाँ headphones to the fullest. भैया पूरी तरह से मैं पूरा कंडक्ट कराने वाला हूँ भैया। ठीक आई है, थिंक सुबह रुपेश की 5 बजे। गर्लफ्रेंड ने भी क्योंकि बोला होगा उसको, रुपेश की रुप गर्लफ्रेंड ने भी बोला होगा कि इसको चेंज कर। उसकी आवाज नहीं आती होगी ना क्लियर कट, तो रुपेश हाँ, को नहीं गिफ्ट नहीं, कोई किया होगा गर्लफ्रेंड उसने। नहीं है यार, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे मेरे दोस्त ठीक ही है, दो गर्लफ्रेंड तीन है। बार बोलने से थोड़ी इतनी ना हम बार मान बोलने की जाएंगे। क्या जरूरत है भाई रुपेश, छुपाने की क्या बात नहीं है? वो तो बनाओ। जोर डाल रहा है, अरे नहीं है नहीं है नहीं है। चोर चोर की दाढ़ी में कोई तिनका। गर्लफ्रेंड नहीं है भैया, नहीं भैया कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सही बताऊं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने दिया है। दोस्त की गर्लफ्रेंड तुम्हें गिफ्ट दे रही है, ये ये तो कैसी और मित्रता किसी है? पे जी। रुपेश भाई खिलाड़ी निकले। रुपेश भाई, मतलब ये सर सब ये तो लीगल थोड़ी है। गद्दारी करने वाला सीन है सर। तारी कुर्बे, बॉय बेस्टी। ये अपने दोस्त को नहीं भैया मतलब कोई दिक्कत नहीं है, गलत बात। रुपेश की मम्मी ने सुन लिया लग रहा है। गया रुपेश। रुपेश कहाँ से गिफ्ट ला रहे हो? ठीक है यार भैया गाइस, आप एक बार हमारे लिए फीडबैक दे दो, यार मैं कैसा हाँ गया। भैया। फीडबैक तुम्हें लाइक डिटेल्ड फीडबैक दूंगा जब मैं तुम्हारा मॉक इंटरव्यू लूंगा। ठीक है, ओके, अभी सर ऐसे मेरा फीडबैक क्वेश्चन, देने का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी तुम्हें डेली फीडबैक देता ही रहता हूँ। ठीक है ना? ओके, सो लेट्स रैप अप दिस सेशन, क्योंकि मुझे कॉल आ रहा है, मेरे दोस्त का है। ठीक है, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है ना? दोस्त नहीं है सर। दोस्त 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 नहीं। मेल फ्रेंड्स। ठीक है, ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट ओके एंड प्लीज डू कंडक्ट सेशंस एंड पार्टिसिपेट एज मच एज पॉसिबल एंड प्रिपेयर वेल। इस बार पक्का होगा, इस वाले अटेम्प्ट में जान लगाओ। ठीक है, इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, लेकिन होगा पक्का। ठीक है, नेहा को तो सर इसी मेरे बार पास होगा। अगली ठीक है, मेरे पास नेहा नहीं को है मुझे अगली पता बार। था। ठीक है, नेहा का इसी बार में हो जाएगा। ठीक है, मेरा भी नहीं है।
हाँ हाँ नेहा भैया, हो जाएगा वो नेहा हो तुम जाएगा। ऑफिस एज एन ऑफिसर किसी ऑफिसर से शादी करोगे, चिंता मत करो, ठीक है ना? नहीं सर, पहले मैं बनूंगी फिर उसके बाद में करूंगी, डोंट तो वरी। वही तो मैं बता रहा हूँ, एज एन एकेडमी जाके ऑफिसर ढूंढेगी। तुम एज एन ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से शादी करोगी, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं समझ गई। ठीक है ना? कमांडो। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय सर, ठीक है, बाय बाय, गुड Bye, sir. नाइट। Good night. गुड थैंक नाइट। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।